کیا ہم نے کبھی اس دن کا تصور کیا ہے جب ہر انسان کو قیامت کے مراحل سے گزرنا ہوگا؟ وہ دن جب دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، وہ لمحہ جب پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا ہمارے سامنے ہوگا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس پل پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ وہ کون ہوں گے جو اپنی امت کے لیے راستہ ہموار کریں گے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرماتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، جہاں صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین، جب سور پھونکا جائے گا پھر وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ قیامت کے روز جب باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا اور اپنی نجات کی فکر میں مصروف ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے فاصلہ اختیار کرے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، بھائی اپنی بہن کو جاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس دن ہر کوئی اپنی ذات کی فکر میں ہوگا، ہر سمت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ سب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سورج سروں کے قریب ہوگا اور اس کی تپش سے لوگوں کا برا حال ہوگا، مگر اسی عظیم میدان میں ایک ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی، ہمارے مالک، دونوں جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے، اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے اور یہی وہ عمل ہے جو سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد مزید 5 سوالات پوچھے جائیں گے جن کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کہاں گزاری؟ کیا اللہ کی اطاعت میں گزاری یا نافرمانی میں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں صرف کی؟ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے اور اس میں کیے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا حلال ذرائع سے کمائی کی اور نیک کاموں میں خرچ کیا، یا حرام طریقوں سے کمایا اور گناہوں میں خرچ کیا؟ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، کیونکہ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے علم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اس کے بیک اعمال کا وزن ہوگا جو میزان پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا انجام جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو انتہائی خوفناک اور دشوار مرحلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پل صراط کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، کون اس پر بجلی کی مانند گزرے گا اور کون اس سے گر کر جہنم میں جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن خوش نصیب لوگوں کی وہاں سفارش فرمائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اور اس اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، پل صراط سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا۔ یہ حوض میدان محشر میں موجود ہوگا۔ جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور لوگ تھکے ہارے ہوں گے تو شدید گرمی اور پیاس سے ان کا برا حال ہوگا۔ سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی وقت انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر نظر آئے گا جو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہوگا۔ اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو پانی عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی سفیدی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی مٹھاس بے مثال ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی ٹھنڈک دل کو سکون دینے والی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بہتر ہے اور اس کی مہک پوری فضا میں پھیلی ہوگی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے تاکہ ہر مومن کو پینے کا موقع ملے۔ جو انسان اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر خاص رحمت ہے۔ اس سے پی کر جانے والا ہمیشہ سیراب رہے گا اور جنت میں بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک اور متقی لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پل صراط کو عبور کر سکیں، اور کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ پہلے پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر حوض کوثر سے پانی پئیں،
क्योंकि हौज़ कौसर का पानी पाकीज़ा लोगों के लिए है और इससे पीने के लिए गुनाहों से पाक होना जरूरी है। हौज़ कौसर के बाद पुल सिरात का मरहला आता है, जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना लाजमी होगा। कोई भी इस पुल से गुजरे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये पुल जहन्नम के बिल्कुल ऊपर बनाया गया होगा और इसके नीचे जहन्नम की खौफनाक आग भड़क रही होगी। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा। इस पर चलना इंतहाई मुश्किल होगा और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही कोई उसे पार कर सकेगा। हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुल सिरात कैसा होगा, हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक फिसलने की जगह होगी जहां पांव जमाना मुश्किल होगा। वहां कांटे और आंखड़ियां होंगी जो गुजरने वालों को पकड़ने की कोशिश करेंगी। जैसे नजद के इलाके में एक कांटा पाया जाता है जिसे सादान कहते हैं, जिसका सिरा टेढ़ा होता है और जो भी उसके करीब से गुजरे उसे पकड़ लेता है। इसी तरह पुल सिरात पर भी कांटे होंगे जो गुनाहगारों को पकड़ लेंगे। मोमिनीन इस पुल से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार यकसा नहीं होगी, बल्कि हर एक की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। ये रफ्तार उनके आमाल और ईमान के मुताबिक होगी। कुछ खुशनसीब लोग पलक झपकने की रफ्तार से गुजर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पुल पार कर गए। कुछ बिजली की तरह तेजी से गुजरेंगे और लम्हों में जन्नत पहुंच जाएंगे। कुछ परिंदों की तरह उड़ते हुए गुजरेंगे, कुछ तेज घोड़ों की तरह दौड़ते हुए गुजरेंगे और कुछ ऊंटों की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। इनकी रफ्तार में फर्क सिर्फ और सिर्फ इनके आमाल की वजह से होगा। जिनके आमाल जितने अच्छे होंगे उनकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी। कुछ लोग अल्लाह ताला के फजल से आसानी के साथ जहन्नुम से बचकर पार हो जाएंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ को रास्ते में जख्म लगेंगे और वो मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन आखिरकार वो पार हो जाएंगे। और कुछ बदनसीब लोग जख्मी होकर अपना तवाजुन खो बैठेंगे और जहन्नुम में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। एक मर्तबा हजरत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की तफसीली वजाहत फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, ए लोगो, क्या तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा? ये मंजर कैसा होगा? फिर खुद ही इरशाद फरमाने लगे कि जहन्नुम लोगों पर ऐसे जाहिर होगी गोया चर्बी की एक तह जमी हुई हो, जो ऊपर से ठोस नजर आती है मगर अंदर से बहुत खतरनाक है। जहन्नुम अपने असहाब यानी जहन्नमियों को पकड़ लेगी और मेरे असहाब यानी जन्नतियों को छोड़ देगी। फिर जहन्नुम में जाने वाले उसमें गिरते चले जाएंगे और जहन्नुम उन्हें इस तरह पहचान लेगी जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। कोई गलती नहीं होगी और हर शख्स को उसके मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। मोमिनीन और सादिकीन इस पुल को इस तरह आसानी से पार कर लेंगे कि उनके कपड़ों पर कोई निशान तक नहीं होगा और वो सही सलामत जन्नत में पहुंच जाएंगे। एक अहम बात याद रखें कि पुल सिरात हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेंगे उसके लिए ये कुशादा और वसी वादी की तरह होगा जिस पर चलना आसान होगा। जैसा कि हजरत सैयदना सईद बिन अबी हलाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और उनके लिए गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। फिर दीगर अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे। इसके बाद उम्मत मुहम्मदिया गुजरेगी और फिर दूसरी उम्मतें अपने अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जबानें हमेशा मेरे जिक्र से तर रही हों। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमाई। और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब्बि सल्लिम पुकारे रहे होंगे। ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा। जरा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में मसरूफ होगा। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, इन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीए आज़म हैं, यानी सबसे बड़े सिफारिश करने वाले। और हकीकत यह है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सिफारिश न हो
तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुजर ही न सके। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की सख्त जरूरत है। नाजरीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे वो वहां कुछ वक्त तक सख्त से सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें पूरी तरह मिलेगी और वो अपने बुरे अमाल का बदला पाएंगे। जहन्नम का अजाब इंतहाई शदीद और तकलीफदेह होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अजीम है। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है और उनकी रहमत हर चीज पर गालिब है। जब उन गुनाहगार मोमिनों का अजाब मुकम्मल हो जाएगा और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें जहन्नम से निकाल लेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां वो अबदी सुकून, आराम और खुशियों में जिंदगी गुजारेंगे। न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ, न कोई बीमारी, और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत हमेशा उन पर साया फिगन रहेगी। ये अल्लाह ताला का फजल और करम है जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज होगा। अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे दूर से एक घिना, खूबसूरत और सायादार दरख्त नजर आएगा। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके ठंडे साए में आराम कर सकूं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बोंदे, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा और मजीद कुछ नहीं मांगेगा? वो बंदा कहेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही काफी है। फिर अल्लाह ताला अपने फजल से उसे उस दरख्त तक पहुंचा देंगे। वो वहां आराम करेगा और खुश होगा। वक्त गुजरता रहेगा और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहेगा। फिर कुछ अरसे बाद उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो पहले वाले दरख्त से कहीं ज्यादा हरा भरा, ज्यादा सायादार और फलों से लदा हुआ होगा। उसकी खूबसूरती देखकर वो बेचैन हो जाएगा। वो फिर अर्ज करेगा, ए मेरे मेहरबान रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके घने साए और लजीज फलों से फायदा उठा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, नहीं परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे वहां भी पहुंचा देंगे। कुछ मजीद वक्त गुजरेगा और वो बंदा मुतमईन होगा। उसके बाद उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा और जिसके साथ साफ शफाफ पानी भी बह रहा होगा। वो फिर बेताब होकर अर्ज करेगा, ए मेरे करीम रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसका साया, मीठे फल और ठंडा पानी हासिल कर सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, अब हरगिज नहीं करूंगा, ये मेरी आखिरी दरखास्त है। फिर अल्लाह ताला उसे के वहां भी पहुंचा देंगे और वो अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ अंदोज होगा। फिर अचानक उसे दूर से जन्नत का अजीमुशान दरवाजा नजर आएगा जो नूर से चमक रहा होगा। वो उसकी तरफ मुतवज्जे होगा और अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे ताकि मैं उसके करीब बैठकर जन्नत की रौनक, उसकी खूबसूरती और जन्नत वालों की खुशी को देख सकूं। अल्लाह ताला अपने फजल से उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। वो वहां बैठकर जन्नत के मनाजिर देखेगा। जब वो जन्नत की बेमिसाल खूबसूरती, उसकी हैरत अंगेज नेमतें और जन्नतियों की खुशी देखेगा तो वो बेख्तियार होकर पुकार उठेगा, ए मेरे करीम रब, मुझे भी जन्नत में दाखिल फरमा दे, मुझे भी इन नेमतों से नवाज दे। अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जब वो जन्नत के अंदर जाएगा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। हमें चाहिए हम दुनिया की इस फानी जिंदगी में नेक अमल करें, वालदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें ताकि क़यामत के दिन हम एक दूसरे के साथ जन्नत में जा सकें। आएं आज सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह, हमें हमारे वालदैन और हमारे तमाम रिश्तेदारों को ईमान पर मौत अता फरमा, हमारी कब्रें नूर से भर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।